financing infrastructure, financing industry, and also giving effect to all the social sector schemes as far as the government is concerned. Without getting into the repetition of what has been stated several times over, the last several years had obviously been a challenging time for the public sector banks. Because these are not banks which are only into retail banking. They finance large projects. And for reasons which I have stated several times over, a large amount of their lending had been held up in the NPAs. And in the past few years, when we've had this annual review, there was an obvious challenge of how to crack the problem. The recoveries were somewhat slow. Legal procedures were indefinite. And to top it all, the processes which had been prescribed either by the government or the Reserve Bank itself were not yielding much results. This year, of course, the presentations made by the bankers themselves was very different. Even though these are early days as far as the IBC is concerned, its impact was clearly visible in this meeting. It was visible because after a prolonged period of several quarters, the last quarter saw a net profit. The earlier quarters had seen a dual challenge. The recoveries were slow, and whatever profits they were making were going into provisioning. And therefore, on basis of the last quarter and what they are projecting for the quarters to come, the good news for them is that the NPAs are on the decline because recoveries have picked up. Recoveries have picked up not only because of the resolutions which have taken place in the NCLT, but they've also picked up because those debtors who fear that they are likely to cross the red line are paying up in anticipation of an IBC process being compelled on them. Because once the petition is admitted, then Section 29 capital A comes into force. And for the existing promoters, the consequences are obvious. I have often said that this is one of the unintended consequences of 29A, that potential defaulters don't want to be potential defaulters and they are paying up. And therefore this has brought in some light at the end of the tunnel where recoveries are better, the lending ability of the banks is much better, and to top it all, their credit growth, when each of the bankers made his presentation, has significantly moved upwards. Also, the change of the legal regime, which visited them with very severe penal consequences, even in relation to some bona fide decisions,
has now been altered by the Parliament. So this has also given the bankers a much larger ability to take commercial decisions on commercial considerations. And therefore there is a far greater confidence. Coupled with this, of course, we are passing through a phase of a good growth as far as the economy is concerned. Consumption has moved up. Growth figures are encouraging. And therefore the banking activity is bound to pick up. Obviously the bankers also have a certain expectation, which I have told them that we will certainly consider. Some of them did mention that the PCA guidelines should be revisited, because that is indirectly impacting their lending ability, and that government should be more upfront in the capital requirement of some of these banks. I have assured them that we'll immediately look at this subject, because we are as keen as them, as every Indian is, that this opportunity is not missed, because we want this cycle of high consumption, high growth, NPA recoveries, credit offtake, really to be utilized to the fullest in order to help as far as the economy is concerned. The banks are very confident that under the circumstances they will maintain for various sectors of the economy the liquidity which is required. And obviously today we are launching these 3 new initiatives. The first, of course, being the Financial Inclusion Index for the states. Now, all the indexes different departments of the government have launched in the recent past carry a certain amount of credibility, because they've been very objectively handled. And we want element of competitiveness amongst the states itself, so that each one vies for a situation where the benefits of banking reach its last mile in the state itself. And I'm sure states which do well will have a lot to feel proud about. In any case, we've done reasonably well as a nation in the last few years as far as financial inclusion is concerned, not only through the Jan Dhan or the social sector insurance policies or the pension plan or the Mudra Yojana. The benefits are showing result as far as increased activity in the rural areas is concerned and amongst the weaker sections of the society. The MSME sector has been a matter of great concern, because it's one of the largest employers, and therefore credit availability to them to be free from all forms of red tapeism, to be done online and within the shortest period, is the second initiative. We had announced recently that we want a banking touch point at all places where the distance of the touch point from any citizen should not be more than 5 kilometers. And therefore this is through the brick and mortar branches, this is through the banking correspondence, this is through ATMs, this is through post offices, and we are working in that direction. And the GIS mapping, which is being launched today, will be a very convenient method for any person
who aspires to be in touch with the bank to find out which is the nearest available point, and therefore he can conduct his banking activity with that point. This initiative also in the geographical spread as also an equitable spread itself will go a long way. As I said, if I had to describe today's meeting, I attended the morning and the evening session of the meeting where bankers were also asked to make presentations. Having attended at least 5 such annual reviews in the past, or 4 others in the past, I think we've overcome what was traditionally described as the legacy issues. And the faster we get out of them, I think the better it is as far as the Indian economy is concerned. Thank you. Now, House is open. I would request you to kindly focus your questions regarding today's meeting. Now, Mr. Dheeraj. Today you spoke about recovery and you said the legacy issues are almost over. I didn't say they are over. I mean, you're saying that we are getting out of the woods in that sense. We are on the right track. But there is another larger issue on the forefront, and that is of IL&FS. It looms large right now. Today, LIC, after a meeting, the LIC chairman said that they would not let IL&FS fail. What is the stand here right now? You see, it's not necessary for everyone to speak out of turn. The LIC is a shareholder, and its chairman has already spoken to you. And therefore, it's not necessary. As far as the government is concerned, we are closely in touch with the situation and monitoring the situation. And I have nothing further to add to what the LIC chairman has said. So what is the bankers' exposure to the IL&FS? One quick question here. Sir, bankers have demanded a relaxation in the PCA guidelines. What is exactly the demand as of now, and how quickly can we see this going forward? The suggestions which came from bankers was that the way the norms are, they have to grow. Unless they grow, unless their incomes increase, there is difficulty coming out of the PCAs. So there are thresholds, different thresholds in the PCA norms, threshold 1 and threshold 2. So they have requested for the provisioning norms, the threshold 1 levels. They have also requested for the way that the lending starts and the risk-based assets also assigned, so as to allow them a little headroom for growing. This is what is the essential demand. And also they have requested for an alignment with the BESL, exactly as what BESL says. The various risk weights and provisioning norms and capital norms are aligned to the BESL. This is what has been the general request. Also, quicker recap? Yes, that Honorable Finance Minister already mentioned. Separate issue, but that's really addressed to us. So you'll take it up with RBI, with the regulator, of course. They made a suggestion. After all, the procedures have to be followed. This gentleman. Sir, Somesh from Business Standard. Do you think there is a need to reassess the capital requirement of public sector banks? You see, I'll tell you, this is always an ongoing process. And I've repeatedly said that we stand fully in support of the public sector banks. And there is almost an implicit government assurance that these banks will remain in the best of health. And therefore, in the last 3 years, a 70,000 capital and a 2,12,000 capital is something which we've already done. The last one, of course, some amount remains to be inducted into the banks. But that kind of a exercise as to the capital requirement continuously goes on. Yes, Mr. Prabhu. Sir, I come back to the issue of the RBI governor. He had in his deposition before the Standing Committee on Finance, because of the issue of accountability of public sector banks,
had asked for certain amendments to the Banking Regulation Act. What is the Ministry of Finance's position? Do you believe that you can allow RBI more leeway? Because after all, PSP... Well, the issue is before the standing committee. No. He's already written to Department of Finance and asked Finance Ministry See, let the standing committee make its recommendations. We'll take a view. We only announce decisions once we take a view. You are entitled to know the decision, not the decision-making process. Sir, the recovery target is 1,80,000 crore at the end of this fiscal. So what kind of NPA you are looking at the end of this fiscal? You see, it will then depend on how much the interest is mounted up and so on. So it's difficult to predict the figure collectively of the banks at this moment, but certainly a large amount of recoveries, because this optimism of the banks and the department, the DFS, is based on the fact that several major cases now are in the pipeline at almost the penultimate stage of resolution. Coupled with that, as I said, and I'm saying this at the cost of repetition, is the fact that the consequences of the Act are also enabling better recoveries. Yes. Judge sir, S. Kumar here. One side you are talking about recapitalize, and other side you are marginalizing the banks. So how do you means if the recapitalization is continuous, then what about the marginalization? You are already Vijaya Bank and these three banks already has merged. Well, a single bank has to be strong. A merged bank also has to be strong. No, but you can't work for a situation where two weak banks merge and create a larger, weaker bank. Therefore, there is no inconsistency in the two. The fact that you merge doesn't mean that you can merge only as a weaker bank. But your health must be good. So even when two or more banks merge, the idea is to create a strong single bank and not a weak, larger bank. Sir, Monica Yadav here. Yeah. Sir, will we see any further consolidation and merger this financial year? Okay, as I said, you have the liberty of writing and broadcasting decisions before they are taken. I don't have the liberty of allowing a speculation to go on. Yes, Rahul, yeah. Sir, Mr. Kumar said that there is focus on arresting slippages. In a recent letter, Mr. Raghuram Rajan also talked about that the future challenges may come from the MSME lendings. Also, he talked about the fact that on one hand, when you are talking about honest decision making needs to be protected, in the letter he has talked about the fact that there are several questions over the decisions made by past CEOs which needs to looked into when it comes to the issues of big NPAs. You see, I think for anyone, a post-mortem is easier than action when the same was required. मर्जर को लेकर सरकार ने फैसला लिया है 3 बैंकों को लेकर, लेकिन बैंक यूनियन विरोध कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि नई भर्तियां इसके बाद बंद हो जाएंगी जो कि पहले से शुरू हो रही। साथ ही साथ उनका वेज रिवीजन काफी समय से बचा। मर्जर है, ये कर्मचारियों के हित में रहेगा। कारण ये है कि मर्ज्ड एंटिटी जो है वो बैंकिंग एक्टिविटी को एक्सपैंड करेगी, वो जो मौजूदा नौकरियां या जॉब्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी। और अगर बैंकों को वर्तमान कमजोर स्थिति में छोड़ दिया जाए, वो यूनियंस को प्रोटेक्ट करेगा लेकिन वर्कमैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। as to
what steps these banks are taking to come out of the PCA framework? You see, that is what the Secretary in the initial presentation, which I supplemented, said. One, they wanted the norms to be revisited. They felt that they were too tight. Secondly, in order to get out of it, the expedition of recoveries. Thirdly, some of them were also speaking in terms of capital. Thank you, friends. Thank you very much. बैंकों की सेहत को लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की, और कुछ जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको बता दें कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कि पिछले कुछ साल सरकारी बैंकों के लिए खासतौर पर काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं और बैंकों के बड़े कर्ज एनपीए में भी फंस गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आरबीआई की कोशिशों का कुछ खास असर नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, जो आईबीसी लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके बाद काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला। तो ये कहने के पीछे किस तरीके का एक संकेत फाइनेंस मिनिस्टर दे रहे थे। एक और बड़ी बात, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की शुरुआत की गई और दिसंबर 2018 मतलब इस साल के अंत तक बैंकों का एक एक्शन प्लान तैयार होगा। कैसे बैंकों की सेहत सुधारी जाए, उस पर एक खास तौर पर फोकस किया जाएगा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डीडी शर्मा, चेयरमैन रिस्क कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पीके मल्होत्रा, पूर्व डिप्टी एमडी एसबीआई, हमारे साथ हैं। शर्मा सर, आपने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को सुना, और चाहे एनपीए को लेकर बात हो, सरकारी बैंकों को लेकर बात हो, या फिर आरबीआई की कोशिशों को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के पॉइंट्स हो, आप क्या समझते हैं कि किस तरफ इशारा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर का? देखिए, मेरे ख्याल से ये एक जो अभी स्टेटस है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का, उसके बारे में ये एक अपडेट था, और ये कहना उनका जायज़ था कि आईबीसी के लागू होने के बाद में जो है वो एक तरह से रिजोल्यूशन जो है वो जल्दी होने की अब उम्मीद हो गई है। साथ ही साथ इसके कारण जो है बैंकों की रिकवरी फास्ट होगी और वो होती हुई दिखाई भी दे रही है। और जहाँ तक बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन का सवाल है, वहाँ उन्होंने कहा कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी वो पीएसयू बैंक्स को जो है रिकैपिटलाइज करेंगे। मल्होत्रा जी, उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद रिकैपिटलाइजेशन को लेकर कुछ बड़े ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आए, कैसे बैंकों को पूंजी दी जाए, लेकिन उस पर फिलहाल कोई फैसला होता हुआ नजर नहीं आया। आपकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशंस थी? देखिए, जहाँ तक फाइनेंस मिनिस्टर की अनाउंसमेंट का सवाल है, इनडायरेक्टली उन्होंने कह ही दिया है कि ये कंटिन्यूसली रिव्यू पे रखा जा रहा है और कैपिटल इन्फ्यूजन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होने की ज़रूरत है और उसको होना ही है अगर हमें इन बैंक्स की सेहत का ख्याल रखना है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक से पीछे खड़े हैं, उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि शॉर्ट ऑफ अनाउंसिंग एन अमाउंट, उन्होंने कह ही दिया है कि हाँ कैपिटल इन्फ्यूजन होगा। अब कौन से क्वार्टर में होगा, किस समय होगा, क्या मॉडलिटीज़ होंगी, वो मेरे ख्याल में अभी डिस्कस हो रही हैं और फाइनल होने पे मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट की जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त जॉइंडर कैपिटल से अविनाश गोरक्षर भी है, मार्केट एक्सपर्ट भी है। अविनाश, बैंकों की सेहत सुधारने को लेकर कुछ ऐलान तो किए गए फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन हाँ, क्लियर कट इनफैक्ट रिकैपिटलाइजेशन को लेकर उनकी तरफ से कोई एक तरीके से क्लियर बात सामने नहीं आई है। पर व्हाट डू यू थिंक, ये बैंकिंग सेक्टर को कैसे इम्पैक्ट करेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इस न्यूज़ फ्लो को इतना सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि रिकैपिटलाइजेशन पे जब तक गवर्नमेंट कोई ठोस प्रपोजल अनाउंस नहीं करता है, तब तक मेरे ख्याल से बैंकों का जो एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस है उसके ऊपर काफी चिंता रहेगी। स्पेशली पीएसयू बैंक्स का जो सेकंड क्वार्टर का नंबर आने वाला है, इसमें ये अनुमान है कि सेकंड क्वार्टर भी एसेट क्वालिटी पे काफी दिक्कतें पीएसयू बैंक्स को फेस करनी पड़ेगी। तो आज का जो अनाउंसमेंट हो गया है
वो मेरे ख्याल से इतना डायरेक्टली मार्केट्स को कल शायद PSU बैंक्स को अफेक्ट न करे। हालांकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत बाइंग फ्रंटलाइन बैंक्स में आ सकती है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, लेकिन ओवरऑल अगर PSU बैंक्स देखे तो हमको लग रहा है कि जब तक कोई ठोस प्रपोजल नहीं आता है, यहाँ पे कोई बड़ी री रेटिंग की संभावना एटलीस्ट इन द नियर टर्म लग नहीं रही है। हमारे साथ बाकी दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट शर्मा सर, ये कुछ एक जो चिंताओं में ये भी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि जो NPA से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं बैंकों के NPA रिकवरी में, आखिर एक्चुअली उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। अगर हम प्रयास के तौर पर देखें तो आपको किस दिशा में जाता हुआ नज़र आ रहा है? ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो सकती है? देखिए, जल्द ही सॉर्ट आउट होगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके परिणाम जो है वो काफ़ी आशाजनक है। और मैं समझता हूं कि IBC के कारण जो है वो रिकवरी में काफ़ी तेजी आई है, और बहुत सारे ऐसे अकाउंट जो अदरवाइज जो है जहां से रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता, वहां से अब रिकवरीज हो रही है। साथ ही साथ जो अकाउंट्स जो है NCLT में चले गए हैं और वहाँ जो रिजोल्यूशन है वो हो सकता है 1-2 क्वार्टर लगे हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी रिकवरी की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और हेयर कट जो है वो फॉर्चुनेटली कम हो रहे हैं जितने बैंकिंग सेक्टर ने सोचे थे और बैंकिंग सेक्टर ने प्रोवाइड कर रखे थे, तो ये एक अच्छी बात है। इस बीच खबर ये भी आ जाए कि जब मीटिंग चल रही थी तो ये खबर आ रही थी कि IL&FS को लेकर सरकार काफी गंभीर है। फिर LIC चेयरमैन का स्टेटमेंट आया कि IL&FS को डूबने नहीं दिया जाएगा, और जब फाइनेंस मिनिस्टर से इस बारे में पूछा गया तो वो भी इस पूरे मैटर में काफी पॉजिटिव ही दिखे। पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। Not necessary for everyone to speak out of turn. The LIC is a shareholder and its chairman has already spoken to you. And therefore, it's not necessary. As far as the government is concerned, we are closely in touch with the situation and monitoring the situation. And I have nothing further to add to what the LIC chairman has said. इनफैक्ट DD शर्मा सर, आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना कि हाँ डेफिनेटली इस पर हम पॉजिटिव हैं और डूबने नहीं दिया जाएगा IL&FS को, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस जगाने में काफी है? जी हाँ, डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना, और साथ ही साथ जो LIC के चेयरमैन हैं और SBI के चेयरमैन हैं जो कि मेजर शेयर होल्डर्स हैं इसके अंदर, उनका ये कहना कि सारे ऑप्शंस, सारे विकल्प खुले हैं और किसी भी तरह की जो ज़रूरत होगी IL&FS की, चाहे वो फंड इन्फ्यूजन की हो, चाहे राइट इश्यू ला करके और पैसा जुटाने की हो, तो सारी ज़रूरतें पूरी की जाएगी और इस इंस्टीट्यूशन को बचाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो एक इनफ कॉन्फिडेंस देगा इन्वेस्टर्स को। और इस अनाउंसमेंट के बाद में मार्केट में भी जो है आपने देखा होगा कि लास्ट में जाकर के IL&FS ग्रुप की सारी कंपनियों के अंदर जो है वो बाइंग थी और वहाँ एक इम्प्रूवमेंट देखा गया था। अविनाश, आप देखते हैं कि निवेशकों में एक कॉन्फिडेंस जो थोड़ा बहुत डगमगाया था स्पेशली इस खबर के बाद, वो थोड़ा सा वापस आया होगा जब सरकार ही कह रही है कि हाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नेगेटिव ना हो। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट अगर ये एश्योरेंस दे रही है तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन जरूर निकलेगा। हालांकि सोल्यूशन निकलने के लिए थोड़ा समय जरूर लग सकता है, बट डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी हो। तो इसलिए हमको लग रहा है कि मार्केट्स क्लियरली कोई ठोस प्रपोजल के लिए वेट करेगा। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि इन द नियर टर्म जब तक कोई बड़ा क्लियरिटी प्रपोजल पे नहीं आता है, तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशकों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। स्पेशली IL&FS के ग्रुप की कंपनीज को AGM उनका 28 को है, तो उसके बाद क्या कमेंट्री आती है मैनेजमेंट से, क्या नतीजा आता है और किस प्रकार का आउटलुक मैनेजमेंट कहती है, उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। इनफैक्ट बैंकों के दूसरे रिकैपिटलाइजेशन को लेकर सरकार ऐलान कर सकती है, इसके संकेत जरूर हैं, और यही बात खुद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी आज कही। सुनिए। I've repeatedly said that we stand fully in support of the public sector banks, and there is almost an implicit government assurance that these banks will remain in the best of health. And therefore, in the last 3 years,
a 70,000 capital and a 2,12,000 capital is something which we've already done. The last one, of course, some amount remains to be inducted into the banks, but that kind of a exercise as to the capital requirement continuously goes on. इस बीच मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप से बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर अपना समय देने के लिए। इनफैक्ट हम दूसरी बार देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर बैंकों की सेहत को लेकर काफी सबके सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक गंभीरता नजर आ रही है सरकार की तरफ से, एक प्रयास है, गंभीर प्रयास की कैसे सेहत सुधारी जाए। कैसा इम्पैक्ट आप देखते हैं इस पूरी सेक्टर पूरे बैंकिंग सेक्टर पर की सेहत पर इसका? देखिए, बहुत ही जरूरी था सरकार की तरफ से एक कॉन्क्रीट स्टेप लेने की, क्योंकि मार्केट में जैसे रूमर्स आ रहे थे, मार्केट में जैसे एक नर्वसनेस निवेशकों के बीच में था और IL&FS को लेके जो शंका था, दैट वाज एक कंटेजियन की तरफ बाकी कंपनीज और बाकी सेक्टर्स में भी स्प्रेड हो रहा था। तो सरकार की तरफ से कुछ क्लियर स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी था। तो फाइनेंस मिनिस्टर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इससे एक दो मैं टेक अवे जो है हमारे लिए, तो एक तो PSU बैंक के बारे में बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने कहा है कि सरकार इज फुल्ली बिहाइंड द PSU बैंक एंड एक इम्प्लिसिट गारंटी है सरकार का PSU बैंक के लिए। ये बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आई थिंक मार्केट विल टेक इट पॉजिटिवली। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो IL&FS के स्पेसिफिक मैटर में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि सरकार की तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर LIC ने बोला है कि एवरी ऑप्शन इज ऑन द टेबल और FS के मामले विचार किया जा रहा है। आई थिंक वो भी एक इंडिकेशन सोल्यूशन की तरफ है कि शायद LIC इसमें कुछ करने का सोच रहा है। तो दैट शुड बी गुड फॉर द IL&FS एंड द फाइनेंशियल मार्केट एज ए होल, क्योंकि इट नॉट अफोर्ड टू इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन जिसका इतना मार्केट में डेट है, AAA रेटिंग था, उसको सडनली यू कांट लेट इट कोलैप्स और लेट इट स्टार्ट डिफॉल्टिंग द वे इट इज डिफॉल्टिंग। तो आई थिंक एक जरूरी था और जरूरी स्टेप था। कुछ और भी कॉन्क्रीट स्टेटमेंट्स आ जाते तो अच्छा, शायद और भी बेहतर होता IL&FS के मामले में, पर चलिए जितना मिला उसी से काम चलाना पड़ेगा और PSU बैंक के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। और निवेशकों का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए ये पॉजिटिविटी काफी है सुदीप सर? कुछ हद तक मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि आई वुड से 50% काम हो गया है, क्योंकि PSU बैंकों के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है। IL&FS के बारे में इनडायरेक्टली बोला है कि LIC इज गुड एंड नीडफुल। तो आई थिंक इनडायरेक्टली सरकार की तरफ से बोला गया है कि IL&FS में भी मॉनिटरिंग इट एंड सही वक्त पे शेयर होल्डर जो कि LIC है विल टेक नेसेसरी स्टेप्स। तो आई थिंक क्वाइट रीअश्योरिंग। और जैसे मैं बता रहा था कि और कुछ क्लैरिटी आ जाता है IL&FS के बारे में तो शायद बेहतर होता। ऑल राइट, इस वक्त हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, संदीप जैन इस वक्त हमारे साथ है। संदीप, बहुत स्वागत है आपका। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पूरे बैंकिंग सेक्टर की सेहत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, आपके लिए उसके मेन टेक अवेज क्या रहे हैं? देखिए, वेरी फ्रेंकली थोड़ा सा आपको हाईलाइट देना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इनफैक्ट यहाँ पर IL&FS को लेकर बोला गया कि ज्यादा हम पूरी तरह पॉजिटिव हैं और कोशिश की जाएगी कि डूबने नहीं देंगे। तो यही एक मेन बात है जो इस एक निवेशकों में भी डर का माहौल था कि किस तरह इस पूरे मैटर को सुलझाना है। वो पॉजिटिविटी क्या काफी है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, आज भी जैसे ही मार्केट में एक अनाउंसमेंट आया कि LIC पूरी कोशिश करेगी और सरकार पूरी कोशिश करेगी IL&FS को डूबने ना दें, और इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। हालांकि मार्केट बहुत धीरे धीरे रिएक्ट किया, बट जब बाद में समझ में आया कि मार्केट को की अनाउंसमेंट बहुत बड़ा और ओवरऑल सेंटिमेंटली बहुत सही था ये, और पूरे सेंटिमेंट्स को चेंज किया, फिर DHFL की भी पॉजिटिव न्यूज आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को अब ये समझना पड़ेगा कि 2008 में जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने वहां की कई जो कंपनियां थी उनको फेल होने नहीं दिया, जैसे कि वहां की इंश्योरेंस कंपनी भी थी, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी, और ये सब की जब बात आ रही थी, तो सर्टेनली गवर्नमेंट का ये ड्यूटी होता है, रोल होता है कि कहीं ना कहीं इन सिस्टम में ये नहीं तो बहुत ज्यादा एक कंटेजियन इफेक्ट आए, उसको बचाने के लिए ये काम करना जरूरी था, और इससे बहुत पॉजिटिव एक मैसेज गया है। और मेरे हिसाब से IL&FS जो एकदम एक नई NBFC और नए रूप में आई थी,
और IFCI के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो एक पुरानी कंपनियां थी। बट अब अगर PSU बैंक पुरानी थी, मगर एक नई चीज अगर ऐसे खराब होती है तो सर्टेनली सरकार उस पर बहुत ध्यान देगी। और अच्छे खासे एसेट्स है, रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं इनके पास, तो बहुत सारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया इंडिया के लिए। तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है एंड दिस विल क्रिएट अ गुड इंपैक्ट इन द मार्केट। मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं इस अनाउंसमेंट का? नहीं, सर्टेनली पॉजिटिव इंपैक्ट आज मार्केट ने दिया है। आज ऑलरेडी एक LIC की तरफ से बयान आया और दिन में भी ये सब सारे पॉजिटिव न्यूज आई थी, तो उसकी वजह से मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है। और आज आप देखिए कि 200 DMA और 100 DMA के बीच में मार्केट अटका हुआ था और आज ऑलमोस्ट 11,100 के लगभग 100 DMA है, वहां के आसपास आ जाके बंद हुआ है। सो लेट्स से अगर ये पॉजिटिव न्यूज आती है और अगर अच्छे से बाउंस ले जाए तो हो सकता है कि मार्केट में जो पैनिक वाला माहौल है वहां पे काफी सुधार आएगा और वापस से स्टॉक्स में चाल पॉजिटिव बन जाएगी। ऑलराइट, इनफैक्ट हमारे साथ पीके मल्होत्रा जी भी हैं। मल्होत्रा सर, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, क्योंकि RBI और फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में क्या कुछ फैसलों को लेकर मतभेद है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने आज साफ तौर पर कहा कि अगर खास तौर पर हम RBI की कोशिशों का जिक्र करें तो उसका कुछ खास असर होता हुआ नजर नहीं आया। देखिए, RBI एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है और उनका जो रीडिंग होता है मार्केट का, उसी के हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। और ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री का अपना डोमेन है और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनकी रीडिंग के हिसाब से होती हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि दोनों आई टू आई नहीं देखते हैं। पास्ट में भी बहुत बार ऐसा होता रहा है कि RBI की रीडिंग और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। गवर्नमेंट RBI को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश इनडायरेक्टली करती भी है, लेकिन एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन RBI मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरह के सेंटीमेंट से उस तरीके से अपनी पॉलिसीज चेंज करेगी। PCA का जहाँ तक ताल्लुक है, हमेशा से सभी बैंकर्स कहते रहे हैं कि शायद ये जो नॉर्म्स हैं PCA के इंडिया में जो इम्प्लीमेंट हुए हैं वो शायद काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और हमारी जो इकोनॉमी है, जिस स्टेज में हमारी इकोनॉमी है, वो शायद इन नॉर्म्स को लेने की स्थिति में नहीं है। तो RBI को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए और इन नॉर्म्स को मार्केट के हिसाब से बनाना चाहिए। जब तक मार्केट उस लेवल पे, उस स्टेटस पे नहीं आ जाती है तो शायद ये PCA के नॉर्म्स भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी NPA की सिचुएशन में। बैंकर्स का ये व्यू हमेशा रहा है और RBI का व्यू अपना रहा है। RBI ने धीरे धीरे करके ये PCA के नॉर्म्स को टाइट किया है। हो सकता है कि एक लेवल पे जाके RBI में थिंकिंग आए कि हाँ सही है, हमें इतना टाइट अभी नहीं करना चाहिए कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे ही उसका ऐसा असर पड़े जिसको दोबारा ठीक ना किया जा सके। तो हो सकता है कि और पास्ट में ऐसा रहा है, RBI ने कभी कभी रिलैक्सेशंस दी हैं, अभी भी कुछ देर पहले भी RBI ने रिलैक्सेशन दी है। तो ये दो सेट ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, इन ए वे हम लोग कह सकते हैं कि जो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं जिसका मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। ये कहना कि RBI का कोई असर नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ कि शायद ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये भी जायज़ बात है कि IBC के आने से और जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी हैं रेजोल्यूशंस NPA में, जी इनका असर डेफिनेटली काफ़ी हुआ है और रिकवरी बढ़ रही है और लोगों के ऊपर इम्पैक्ट है। बिल्कुल सर, संकेत तो आज सरकार की तरफ से जानबूझ के NPA संकेत तो सरकार की तरफ से आज यही आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आज वैसे पूरे दिन सरकारी बैंकों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली की मैराथन बैठक आज चली है। उम्मीद थी कि सरकार बैंकों को लेकर कुछ से जो सरकार की तरफ से कुछ ठोस ऐलान आएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, सरकार ने अपनी मंशा जरूर साफ कर दी है कि सरकारी बैंकों को फेल नहीं होने दिया जाएगा और जो बैंकों की पूंजी है, काम का मसला हो या फिर NPA क्रेडिट की समस्या, सरकार बैंकों के साथ खड़ी है।